So we can now start now. I think still people are joining. So the objective is today we'll quickly review what we discussed in the last few lectures, and then we extend our topic to the new one. Okay. So we have to almost all the things have been completed. I think section A may be having some problem. So like I think the earlier lectures of term 2 was not held due to some problem with Hiten sir. So what I will do, as I've told you earlier, that I will take extra lectures of section A from next week onwards, and we'll update you through group also, because more or less in next 15 days or so we have to complete our syllabus, and you may have your examination. Okay. So but for section F, I think already we went across the content, so we'll do it very smoothly. But for A, to discuss the previous content, I think some extra lectures are required. That I will do it. Okay, that is my part, and I will take up that lecture. Okay, now just today, after close to 20 days, there is a gap of 20 days, and the classes were off. And first of all, I'm really hopeful that all of you are fine, your family members are fine, keeping the current corona pandemic. So I hope all you will be fine, because that is the most priority thing that we are having in life, that everyone should be healthy. Not everyone, but apart from family members, to you, about the family members are important. So every family member of yours and you will be healthy. So as we are getting notice from the government and health ministry that the guidelines you should follow, we have to follow, and we are following rather, but still we have to go along. So we have to be a bit cautious in coming next few weeks also. Okay. फिलहाल दैट इज द पॉइंट. नाउ क्विकली विल वेंट अक्रॉस द कंटेंट. सो वी गैप हो गया 20 दिन का, तो हम रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा था, और देन वी एक्सटेंड अवर लेक्चर. So this is we start the last segment that we are discussing is the memory organization, and we talk about a memory. So what are the types of memory? What is the organization? So here we saw the main memory, the cache memory, and in that main and cache memory we discuss the IO processor and CPU. कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो we know it very well. मेन मेमोरी हर एक चीज में इंटरेक्शन होता है, तो सभी चीज के कम्युनिकेशन के बीच में मेमोरी है, और सीपीयू की स्पीड फास्ट करने के लिए हमारे पास कैश मेमोरी है. सो दैट इज व्हाट दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट. देन दिस इज अ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. सो विल डिस्कस, वी ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर, बट लेट्स क्विक रिव्यू. रजिस्टर, कैश फास्टेस्ट है और साइज स्मॉल है. रजिस्टर, कैश, देन मेन मेमोरी, magnetic disk and magnetic tape. This all we discussed. What is the meaning of these all memories we discussed. Then static and dynamic RAM. So जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप बेस्ड मेमोरी होती है वो आप SRAM की कैटेगरी में आता है, और हमारा DRAM जो है बेसिकली इट इज CMOS बेस्ड है, where we use a capacitor to store the value. So the flip flop टेक्निकली जो यूज करते हैं वो SRAM का कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक रैम का कॉन्सेप्ट. जो मेमोरी SRAM से बनी होगी इसका मतलब वो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रही होंगी, और जो मेमोरी डायनेमिक रैम से बनी होंगी वो CMOS यूज करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे. जो हमारे रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर है, कैश मेमोरी है ना, ये सारे स्टैटिक रैम होते हैं. ये स्टैटिक रैम क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन फास्ट है, कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली लेकिन फास्टेस्ट है. डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कॉस्ट इज लो, कॉस्ट कम है लेकिन थोड़ा स्लो भी है. तो जो हमारा रैम कार्ड है, रैम मेमोरी कार्ड रैम है, वो डायनेमिक रैम से बना होता है, डायनेमिक रैम कॉन्सेप्ट से बना होता है. ठीक है. स्टैटिक रैम हमारे पास कैश मेमोरी और रजिस्टर्स स्टैटिक रैम से बने होते हैं, और हमारा रैम कार्ड है इट इज मेड अप ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द डायनामिक रैम. देन वी डिस्कस द 3 स्टेट बफर. आई विल स्किप दिस पॉइंट क्योंकि हाई इंपीडेंस बताना था, हाई इंपीडेंस के लिए स्लाइड था, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं. देन वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, व्हाट इज अ रैम एंड रोम चिप. सो इन दिस फिगर और इन दिस कांसेप्ट वी टॉक अबाउट कि रैम कार्ड का साइज है लाइक इन दिस इज 128 बाइट्स, और रोम का साइज है 512 बाइट्स. इन दोनों को कंबाइन कर सिस्टम क्या करता है, इन रैम और रोम को कंबाइन करता है और मेमोरी एड्रेसेस को एड्रेस असाइन कर देता है. सो विद दिस टॉपिक वी सॉ हाउ टू कंबाइन अ रैम एंड रोम इन अ मेमोरी, एंड हाउ व्हाट इज द वे टू एलोकेट द एड्रेसेस टू ईच ऑफ द लोकेशन इन रैम एंड रोम. सो देन वी, ये अब इसके लिए हमें कोई क्वेश्चन करने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए
एक रैम का और एक रोम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए. So here it is a RAM of size of 128 bytes and the ROM is having a size of 512 bytes. ये हमने यूज किया and then we come to this figure, this numerical I can say the address space assignment to each memory chip. यानी कि हमें एग्जांपल जो दिया हुआ है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल इट वाज देयर कि हमें सिस्टम में 512 बाइट्स की अगर रैम है और 512 बाइट्स की रोम है, कंसीडरिंग one RAM card is having a size of 128 and one ROM card is having a size of 512 bytes. 512 bytes and 128 bytes. इस केस में कैसे मेमोरी एड्रेस असाइन होंगे, दैट वाज अ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये डिजाइन करना, सिस्टम में ये चाहिए और ये रैम कार्ड का या फिर रोम कार्ड का साइज था, एक रैम कार्ड का एक रोम कार्ड. एंड वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट हाउ टू असाइन द मेमोरी एड्रेस रैम 1, रैम 2, रैम 3 एंड रैम 4 एंड फाइनली रैम. तो हम पहले निकाल रहे थे इसमें कितनी रैम चाहिए होंगी या कितनी रोम चाहिए होंगी, एंड देन हमें डिकोडर यूज करके इसको कंबाइन करना है और यहाँ एड्रेस जनरेट कर दिया, लो एड्रेस एंड हाई एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस of RAM 1 or RAM 2, RAM 3, RAM 4 or ROM. So this is the point that we discussed. Okay, and this is a figure. I think I have discussed with section A. Then certain questions were there कि सर कैसे RAM select हो रहा है, कैसे ROM select हो रहा है ना. और हमने बोला ROM में राइट नहीं है तो राइट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ROM जब भी एक्टिवेट होगा तो क्या ऑप्शन परफॉर्म होगा, हमेशा रीड परफॉर्म होगा. रैम में रीड भी होगा, राइट भी होगा, लेकिन रोम में रोम के जब भी एक्टिवेट करेंगे रोम को तो केवल क्या होगा, रीड परफॉर्म होगा. तो दिस इज अ फिगर. वो तो कॉन्सेप्ट हो गया, मेमोरी एड्रेस हो गया, और इस फिगर के थ्रू हम ऐसे सिस्टम में अपने सिस्टम में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड कर सकते हैं. सो चिप सेलेक्ट का इनपुट था CS1 CS2. मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, CS1 CS2 हमेशा 10, दिस इज 1 दिस इज 0. किसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए CS1 की वैल्यू 1 देनी होगी और CS2 बार की वैल्यू 0 देनी होगी. शुड बी 1 एंड 0, 1 0 देनी होगी, तब जाके चिप क्या होगा, एक्टिवेट होगा. तो चिप सेलेक्ट हो गया, रीड राइट हो गया, तो ये डिस्कस किया हमने. सो दैट वाज अ पॉइंट वी डिस्कस हाउ टू मेक सच अ कॉन्फ़िगरेशन. ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया. अगर उसका हार्डवेयर फिगर बनाना हो, हार्डवेयर का रिप्रेजेंटेशन देना तो कैसा होगा, तो ऐसा. ठीक है, and then we do certain questions for this. I think question number 1 and 2 we discussed, 3 we haven't. So 1 and 2 are important. तो 1 तो हमने क्लास में शायद कर लिया था, 2 मैंने आपको एक हिंट देके छोड़ दिया था, that you have to do the question number 2. the 1 कर लिया, question number 2 is बिल्कुल सिमिलर है. मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, जिसका भी रह गया हो या नहीं किया हो या एनीथिंग लाइक दैट, कोई डाउट हो. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा भी हुआ है, देखो, एक्सटेंड द मेमोरी सिस्टम ऑफ फिगर 1. यानी फिगर 1 की बात कर रहा है. फिगर 1 के मतलब क्या है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमें पढ़ा. यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ऐसे इस क्वेश्चन नंबर 2 साइज, रोम का साइज वही गिवन है, सेम लेना है. 128 बाइट का एक रैम कार्ड है और 512 बाइट्स का एक रोम कार्ड है. बाकी क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी कितनी रैम चाहिए सिस्टम में, कितनी रोम चाहिए, और उसके बेस पे हमें ये एक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है. इंडिविजुअल रैम की मैंने एक हिंट आपको दिया था कि बहुत सारे रैम्स लगेंगी, रैम 1 रैम 2 रैम 3, बहुत सारी रैम्स लगेंगी. तो एक काम कर सकते हैं कि रैम का स्टार्टिंग एंडिंग एड्रेस जनरेट कर लें. मतलब बहुत सारे टेबल की बहुत सारी एंट्रीज होंगी, ऐसा करेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही है. और दैट कंटेन्स ऑलमोस्ट 30-35 एंट्रीज. तो हम काम कर सकते हैं, रैम का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, एंडिंग एड्रेस क्या, रोम का स्टार्टिंग एड्रेस क्या, एंडिंग एड्रेस क्या है, उसको मिनिमाइज करने के लिए कर सकते हैं. बट बोथ वे इट इज करेक्ट, कॉन्सेप्ट इज सेम. ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन टिल दिस पॉइंट? हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, कोई डाउट हो, फिर भी कोई टॉपिक में डाउट है किसी को, जस्ट अपडेट मी. ऑल ऑफ यू गेटिंग माय वॉइस थ्रू चैट मैसेज? यस यस रवि.
others reply so that I can just move ahead. अभी आज मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ, रिवाइज भी कर रहे हैं क्योंकि एक गैप हो गया था कनेक्ट करने के। नो नीड टू वरी, आई विल कंप्लीट द सिलेबस कंफर्टेबली, कोई इशू नहीं है, चाहे एफ की हो चाहे एक ही बात हो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी वरीड सिचुएशन, सो विल डू इट। एफ में तो मैंने बताया हो ही गया है, जो भी लेक्चर्स 5-6 बचे हैं उसमें कंफर्टेबली हम कर लेंगे। हाँ, ए में थोड़ा आई विल डू इट, टेक इट, बट ट्राई टू फोकस ऑन द पॉइंट जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। और कोई अपडेट है तो मुझे बताइए। Actually, with that part, that the first RAM-ROM memory part and RAM-ROM part is over, and then we move to the cache memory. So we discussed the cache. We know the importance that the cache is the fastest memory, and the CPU needs this cache memory to store the data, which is required again and again. दो तीन टर्म थे, पहला था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट? ये मान लीजिए मैं एग्जांपल देने के आपको समझाऊं कि से दिस इज आवर the space we are living, houses. This is house number 1, house number 2, house number 3. Try to understand with this example what is locality of reference. Now, these are the houses with numbering, say, starting from this way: 1, 2, 3, 4, 5. And just take an example. If any function is being organized in the colony, so if someone comes with a card, invitation card, what you will do? जैसे 1 से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? 1 पे आएगा, 1 वाले घर पे इनविटेशन कार्ड देगा। उसके बाद जैसे 1 पे होगा तो कहाँ जाएगा? प्रॉब्ली 2 पे जाएगा। इफ से इनविटेशन कार्ड इज देयर, एलिजिबल है, और 2 हाउस पे, 2 वाले हाउस में अवेलेबल भी है, तो जो इनविटेशन कार्ड है पहले 1 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर 3 को, फिर 4 को, एंड सो ऑन। तो इन दिस वे इट विल बी मूव्ड। ऐसा कभी नहीं होगा, कहने का मतलब कि 1 पे डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर सीधे आदमी 7 पे चला जाएगा, या फिर सीधे फिर उसके बाद 5 पे आ जाएगा। इट इज नॉट देयर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट विल बी इन अ सीक्वेंशियल वे इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। इफ दिस इज द प्रोसेस वी फॉलो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, दिस इज टर्म्ड एज अ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मीनिंग देखो लिखा है टेंड टू बी कन्फाइंड विद इन अ फ्यू लोकलाइज्ड एरियाज। हमारे लिए कैसे यूजफुल है कि कैश मेमोरी में अगर मान लो डेटा स्टोर किया जो बार बार रिक्वायर है, अगर 1 की रिक्वेस्ट आई, इसके बाद अलग रिक्वेस्ट क्या 2 लोकेशन की आ सकती है, आनी चाहिए, या उसके बाद 3 की आ सकती है, आनी चाहिए। So this is what we say, the locations are tend to be confined to a few areas only. That is what locality of reference, ये मीनिंग है locality of reference का। दूसरा कैश मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी, ये आपको बता ही दिया मैंने। हिट रेशियो क्या है? अगर रिक्वेस्ट हम कैश में गए, जब भी कोई डेटा देखना होता है सीपीयू को पहले कैश में देखता है, कैश में नहीं है तो मेन के पास जाता है। अब आगे जैसे डेटा रिक्वायर्ड है, कैश में गए, अगर कैश में गए डेटा मिल गया, इट इज नोन एज अ हिट, और नहीं मिला इट इज नोन एज अ मिस। एंड व्हाट इज अ हिट रेशियो? मान लीजिए टोटल रिक्वेस्ट कैश में 10 बार गए, एंड आउट ऑफ 10 8 टाइम्स द सीपीयू गॉट डेटा इन कैश। हो सकता है कोई डेटा रिक्वायर्ड हो, नॉर्मली थ्योरेटिकली वी कैन से लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, बट प्रैक्टिकली देयर आर सर्टेन वेरिएशंस, स्लाइट वेरिएशंस। मान लीजिए 10 रिक्वेस्ट कैश में गई, 8 बार कैश की रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, तो 8/10, so here it will be 80%, that will be the hit ratio। ठीक है, तो ये हो गया लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कैश मेमोरी एंड हिट रेशियो। Then we talk about 3 concepts of writing in a cache: associative mapping, डायरेक्ट मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये तरीके जिससे हम डेटा को कैश में स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कैश में डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, व्हाट कैन बी द मैकेनिज्म। तो पहले एसोसिएटिव मैपिंग क्या बोल रहा है कि जो पूरा कैश हमारे पास है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर ओनली, स्लाइड पे मैं नहीं जा रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास कैश मेमोरी है, और मान लीजिए हमारे पास ये मेन मेमोरी है। ठीक है, तो मेन मेमोरी में क्या है, ये मेमोरी का एड्रेस है, मेन मेमोरी का एड्रेस है, दिस इज मेन मेमोरी एड्रेस, और ये उसका डेटा है। कैश में क्या कर रहे हैं, देखिए कैश में वी स्टोर डेटा। मान लीजिए यहाँ पर ये 10 स्टोर है, और ये मेमोरी लोकेशन मान लीजिए 1000 है, यहाँ से आप समझिएगा।
मेमोरी लोकेशन, मैं मेन की बात कर रहा हूं, ये है लेफ्ट साइड में ये मेन मेमोरी और राइट साइड में ये कैश मेमोरी। ठीक है, अब कैश देखिए कैसे ऑर्गेनाइज है। पहला केस बोल रहा हूँ एसोसिएटिव मैपिंग में, तो दीज आर द एलिमेंट्स वी आर हैविंग, डेफिनेटली कैश की लोकेशन है, ये सारी कैश की लोकेशन है। अब देखिए कैश एसोसिएटिव मैपिंग में स्टोर करेगा एड्रेस और डेटा। एड्रेस किसका, अब मान लीजिए 10 को चाहिए कैश के अंदर, डेटा 10 यहाँ पर आ गया, कैश मेमोरी के अंदर देखिए 10 आ गया, और इसका मेन मेमोरी का एड्रेस क्या है, दैट इज 1000। तो मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा और डेटा यहाँ पर आएगा। मान लीजिए अगली लोकेशन है यहाँ पर, ये मान लीजिए 2000 है, ये हमें कैश में चाहिए, और यहाँ पर डेटा मान लीजिए 20 है, और अगर कैश में चाहिए तो 20 ये आ गया। 20 की मेन मेमोरी की लोकेशन क्या है 2000, तो 2000 विल बी स्टोर्ड। दिस इज नॉट 26, दिस इज 2000। ये है, इफ दिस कॉन्सेप्ट वी फॉलो, इट इज बेसिकली टर्म्ड एज अ associative mapping. Ayush is saying to repeat the mapping part. Okay, Ayush, I think we already discussed the mapping part in detail. मैं example दे रहा हूँ, क्योंकि मैं example दे रहा हूँ, try to understand. तभी मैं repeat कर रहा हूँ, try to understand. ठीक है आयुष? तो जैसे मैं क्विकली मतलब बहुत डिटेल में क्विकली मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने जो एग्जांपल दिया यहाँ पर, अगर एग्जांपल को आप देखो, एसोसिएटिव मैपिंग में क्या हो रहा है, एसोसिएटिव मैपिंग सेज व्हाट, कि ये लेफ्ट में मेन मेमोरी है, ये क्या है, ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है, ये डेटा लाइन है, और ये उसके एड्रेसेस है, उसकी मेमोरी लोकेशन जो है, तो उसका एड्रेस है। मैंने एग्जांपल क्या लिया, मान लीजिए मुझे 10 को और 20 को मेन मेमोरी से कैश में डालना है, बार बार जरूरत पड़ रही है। देखिए 10 डेटा 10 कैश में डाल दिया, और मेन मेमोरी जो उसकी लोकेशन है दैट इज 1000, देखिए वो भी कैश में आ गया। 20 को आप देखो मैंने कैश में डाल दिया, और 20 का एड्रेस क्या है 2000, देखो 2000 भी यहाँ पर, ये 2000 है, 2000 की हमने यहाँ पर। If you organize the cache memory in this way, it is termed as the associative mapping. And as you can see from this concept, कोई special thing हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं associative mapping में. So it is not very efficient and not practically possible to implement this one, क्योंकि बहुत quick results यहाँ पर नहीं मिलेंगे. Can anyone let me know क्यों quick results, proper results नहीं मिलेंगे इसमें? My voice is coming to all of you clearly. मेरी आवाज सबके पास साफ आ रही है? Let me know. Yes, sir. Okay. Okay. तो ये क्या कोई बता सकता है कि ये एसोसिएटिव मैपिंग में बोल रहा बहुत यूजफुल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट मे बी द रीजन? Okay, Ayush is saying something. Anything else? Anyone else who can give an insight? देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, आप देखो, अब मैं आपको बोलूं, मान लीजिए मुझे ये 30 को स्टोर करना, ट्राई टू सी, और 30 की लोकेशन यहाँ मान लीजिए 1500 है, जिसकी बार बार रिक्वायरमेंट है वो रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैं तीसरी लोकेशन 30 को रखूंगा कैश के अंदर, और ये इसकी एड्रेस क्या हो गया, मेमोरी का एड्रेस 1500 था, यहाँ पर रख दिया आपने। अब होगा क्या, जब भी इसकी एड्रेसिंग हो रही है कैश मेमोरी की, कैश के डेटा की, डेफिनेटली इस एड्रेस के बेस पे ही होगी, एंड यू विल सी दीस एड्रेसेस आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंशियल वे, मतलब इट कैन बी इन एनी ऑर्डर, जो डेटा चाहिए वो कैश में आ जाएगा, जो नहीं चाहिए कैश से बाहर हो गया, तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। यानी किसी एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए हमें बहुत सीक्वेंसिंग में एड्रेस नहीं मिलेंगे, यानी एक हो सकता है वर्स्ट केस में एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए हमें सारे स्टैक एलिमेंट्स को देखना पड़े, सारे एड्रेसेस को चेक करना पड़े, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो स्टैक के साथ में एड्रेस डेटा दोनों स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस मेन मेमोरी का है, तो बार बार एड्रेस सारे एड्रेसेस को देखना पड़ेगा डेटा को निकालने। थर्ड यूजफुल भी है, and we are having numerical questions also on this. Direct and set associative. देखिए, we move to the second concept. What is the direct mapping? अब देखिए डायरेक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, मैं क्विकली आपको फिर से रिवाइज कर दूं। डायरेक्ट में क्या हो रहा है, अब देखिए डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट,
Just wait. I will give one illustration. Yes, I can give over here. Now, just what is the concept we are having? डायरेक्ट मैपिंग में क्या कर रहे हैं? हमारे पास मान लीजिए ये मेन मेमोरी है, और हमारे पास मान लीजिए ये कैश मेमोरी है. Just try to understand thing from this example. It will be clear to you. ठीक है. अब इस बार पहली बात एसोसिएट वाला ड्रॉबैक यहाँ पर नहीं है, एड्रेस कोई स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम केवल दो चीज स्टोर करेंगे. वन इज द टैग, राइटिंग टी इज द टैग, वन इज द डेटा. ये हमारे पास कैश मेमोरी है, ठीक है, और लेफ्ट में मेन मेमोरी. अब देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारे पास मेन मेमोरी की 8 लोकेशंस है. तो 8 लोकेशंस की एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होंगी? यू विल सी 8 लोकेशंस होंगी इसकी. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0. मैं नीचे लिख रहा हूँ लोकेशंस 0 0 0 0 0 1 0 1 and 0 and 0 1 and 1. उसके बाद अगली 4 लोकेशंस 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 and 1. ये मेन मेमोरी की लोकेशंस है. कितनी? 8. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ये लोकेशंस हो गई. अब मेन मेमोरी में एलिमेंट है, कैश में डेटा हमेशा मेन से आता है. इस बार कैश में क्या स्टोर करेंगे? जो डायरेक्ट मैपिंग बोल रहे हैं इसको, डेटा जो मेन का है और साथ में उसका टैग वैल्यू. क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द टैग? मान लीजिए मेन में यहाँ पर 10 स्टोर है, एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 एग्जांपल ले लेता हूँ. यहाँ पर 20 स्टोर है, और मान लीजिए यहाँ पर मैं लास्ट वाले को लेता हूँ 30 स्टोर है. यानी कि इस लोकेशन पे 10 है, पहली लोकेशन पे 011 पे 20 स्टोर है, और 11 पे 30 स्टोर है. ये तो मेन मेमोरी में आ गया. डेटा यहाँ से कैश में जाएगा. अब इस डेटा का कैश में स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर होगा? जस्ट सी. तो कैश में हमारे पास हमारे 3 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं केवल. अब एक चीज और है, कैश हमारे पास देखिए वी आर गोइंग टू हैव द लोकेशंस फॉर कैश आल्सो. तो यहाँ पर कैश 0 0 0 1 1 0 and 1 1. यानी कि हमारी मेन मेमोरी की लोकेशंस डिफाइन है. 8 लोकेशंस है मेन मेमोरी के अंदर, और कैश मेमोरी के अंदर लोकेशंस डिफाइन है हमारे पास 4 लोकेशंस है कैश मेमोरी के अंदर. देखिए ये जो 001 है ये एड्रेस स्टोर नहीं कर रहे हैं. ये एड्रेस भी मेन के बाहर है, ये सीक्वेंस ऑर्डर में है, और ये एड्रेस भी कैश के बाहर है, सीक्वेंस ऑर्डर में. एसोसिएटिव मैपिंग की तरह एड्रेस स्टोर करने की जरूरत नहीं है. अब देखिए डेटा स्टोर कैसे होगा. हमें स्टोर करना है क्या? 10 स्टोर करना है. अब देखिए 10 को क्या करेंगे हम? अब हम अपनी दोनों एड्रेस बिट्स को देखेंगे. पहले फटाफट बताइए कितनी एड्रेस बिट्स है मेन मेमोरी में, कितने बिट का एड्रेस है मेन मेमोरी का, और कितने बिट का एड्रेस है कैश मेमोरी का. फटाफट बताइए तो आगे बढ़े. कितने बिट का एड्रेस है मेन मेमोरी का और कितने बिट का एड्रेस है कैश मेमोरी का? Only one reply, others. कितने बिट का एड्रेस है मेन मेमोरी का, कितने बिट का एड्रेस है कैश मेमोरी का? चेतन 50 बिट मेन मेमोरी नहीं, 50 बिट कैसे हो जाएगा? आयुष इज करेक्ट. 1 or 2 other response, others reply quickly. सिंपल दिख रहा है. मेन मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का है? 3 बिट का एड्रेस है मेन मेमोरी का. 000 से स्टार्ट होके और 11 तक एंड. यानी कि मेन मेमोरी का जो भी एड्रेस है वो 3 बिट का है, और कैश मेमोरी का जो भी एड्रेस है वो 2 बिट का है. कैश का साइज स्मॉल ही होगा, मेन मेमोरी का साइज ज्यादा होता है, कैश का साइज कम होता है. तो मेन मेमोरी 3 बिट और कैश 2 बिट. अब आगे चलते हैं कैसे मैप करेंगे. अब हमें क्या करना है, अपने एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है. सो दैट वी कॉल इट एज 2 पोर्शन. One is depending upon this concept, that is one is tag and one is the index. ठीक है. So in this case you will see अब मेन मेमोरी का टोटल साइज कितने बिट का है? 3. सो टोटल एड्रेस जो होगा हमारे पास कितने बिट का हो गया?
3 हो गया। अब इंडेक्स क्या होगा, जितना कैश मेमोरी का साइज होगा, कैश यहाँ 2 बिट का है, देखिए 2 बिट का इंडेक्स हो गया तो 1 बिट का टैग बन जाएगा। भाई हमें पता है कि डेटा मेन मेमोरी से आ रहा है, तो मेन मेमोरी का टोटल साइज कितना, 3 बिट का, देखिए टोटल साइज 3 होगा टैग और इंडेक्स मिला के। जो कैश मेमोरी का साइज है, यानी जितने बिट का कैश मेमोरी का एड्रेस है, वो इंडेक्स बनता है, और बचा हुआ यानी 3 माइनस वो इंडेक्स बन गया और बचा हुआ टैग बन गया। 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2 दैट इज 1, यानी कि 3 बिट के मेन मेमोरी के एड्रेस में 2 बिट का इंडेक्स हो गया और 1 बिट का टैग हो गया। 2 बिट का इंडेक्स ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैश 2 बिट का है। मैं एग्जांपल यहाँ पर और ले लेता हूँ। मान लीजिए, बस समझने के लिए देखिएगा कि टोटल मेन मेमोरी का एड्रेस 4 बिट का है और कैश 3 बिट का है, तो क्या होता, या कैश 2 बिट का होगा। मेन मेमोरी का एड्रेस 4 बिट का, कैश 2 बिट का, तो यहां पर 2 बिट का इंडेक्स जाता, 2 बिट का टैग हो जाता। ठीक है, कम टू अवर एग्जांपल अगेन। हाँ, हम इसी वापस आते हैं कि 3 बिट का मेमोरी एड्रेस मेमोरी का एड्रेस है, 2 बिट का कैश मेमोरी का एड्रेस है, तो वो इंडेक्स बन गया, बचा टैग बन गया। अब देखिए अपने एग्जांपल में, देखिए टैग और इंडेक्स है क्या, कैसे टैग इंडेक्स डेटा की हम बात करें कैसे स्टोर होगा। देखिए 10 को मुझे स्टोर करना है, 10 का लोकेशन क्या है, 0 0 एंड 0। अब 000 में क्या बनेगा, देखिए ये लास्ट के 2 0 इंडेक्स बन जाएंगे, दिस इज द इंडेक्स, और पहला वाला 0 क्या बन जाएगा, टैग बन जाएगा। अब 00 का मतलब देखिए इंडेक्स क्या है, ये 00 इंडेक्स ये हुआ, टैग 0 हो गया, यानी कि 00 के साथ टैग 0 पे डेटा 10 को स्टोर करना है। ध्यान से देखिए अगला एग्जांपल, ये 20 स्टोर करना है, 20 के लिए क्या है, 0 1 1, तो लास्ट के 2 तो इंडेक्स बन जाएंगे, तो इंडेक्स क्या हो गया, 1 इन 1, यानी इंडेक्स 1 इन 1 यानी ये वाला आएगा। ठीक है, 1 इन 1, 1 इन 1 का टैग देखिए क्या है, 1 इन 1 का टैग क्या है, 0, 0 यहाँ पर स्टोर कर दिया और 20 यहाँ पर स्टोर कर दिया। आगे देखिए अब थर्ड में, कैन एनीवन टेल मी थर्ड वाला स्टोर कैसे होगा। करंट स्टेट है, अब मुझे 30 को स्टोर करना है, 30 को मेन मेमोरी से कैश में लाना है, तो कैश मेमोरी में कहाँ कहाँ चेंज होगा और क्या चेंज होगा, लेट मी नो, कोई बताएगा ग्रुप में फटाफट। टैग की वैल्यू 1 हो जाएगी और सेव हो जाएगा। यस, टैग की वैल्यू 1 हो, डेटा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 है 20 की 30 30 डेफिनेटली। आप देखो लास्ट एग्जांपल में जैसा आप लोगों ने बताया, अब देखिए 1 1 1 को स्टोर करना है, तो लास्ट की 2 वैल्यू इसकी इंडेक्स डिफाइन होगी, तो 1 1 इंडेक्स, फिर से देखिए 1 1 इंडेक्स आ गया। जैसा हम देख रहे हैं 1 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर 30 दोबारा स्टोर करे तो ओवरराइट करेगा वो। 1 1 इंडेक्स पे जाएंगे, 1 इंडेक्स पे टैग क्या होगा, 1 हो गया, इस बार ये 0 हट जाएगा, 0 हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और डेटा डेफिनेटली 20 से हट के 30 बन जाएगा। ये एग्जांपल इसलिए भी अच्छा है, अगला जो हमारा इसका मैपिंग है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिलहाल ये हो गया मैपिंग आपका, कौन सी, डायरेक्ट मैपिंग। अब डायरेक्ट मैपिंग की प्रॉब्लम क्या थी, जो अभी एग्जांपल हुआ लास्ट में, देखिए 1 1 टैग 0 स्टोर होगा या फिर टैग 1 स्टोर, अब यानी टैग 1 का साइज बहुत जल्दी कि हम केवल एक ही टैग को स्टोर कर पा रहे हैं। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, द सोल्यूशन टू दिस, कैन एनीवन लेट मी नो क्या सोल्यूशन है इसका, ये बता सकता है। भारत कह रहा है ओवरराइड, यस भारत ओवरराइड ही होगा, मतलब जो डेटा है ना वो ओवरराइड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नया टैग और नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताइए कोई सोल्यूशन क्या है इसका, मैंने पढ़ाया इसका सोल्यूशन क्या है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। मैं एग्जांपल रिमूव कर रहा हूं। अब देखिए, तो पहले एसोसिएटिव मैपिंग हो गया, दूसरा सेट एसोसिएटिव मैपिंग हो गया, सॉरी दूसरा एसोसिएटिव डायरेक्ट मैपिंग हो गया, और तीसरा है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, अभी और रिवाइज करना रह गया। सेट में देखिए क्या हो रहा है, जो मैंने बोला, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैश को एक्सपैंड कर दिया कह सकते हैं, कैश की एक रो में देखिए 2 सेटअप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, सेट एसोसिएटिव कंसेप्ट की बात कर रहा है, और कौन सा, ये 2 वे मेमोरी है। 2 वे का मतलब क्या है, कैश में डेटा 2 बार स्टोर कर रहे हैं,
अब देखिए अभी जो एग्जांपल पढ़ा हमने उसमें एक इंडेक्स पे ये सिंगल टैग था और सिंगल डेटा था, लेकिन चूंकि ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग है विद टू वे, हमारे पास पर्टिकुलर इंडेक्स पे दो टैग स्टोर हो रहे हैं, दो डेटा स्टोर हो रहे हैं। अगर प्रीवियस एग्जांपल को लूं, मैं यहाँ अगर ओवरराइट करूं अपने एग्जांपल को, तो उसमें क्या था कि पहला टैग वहां चूंकि सिंगल बिट का टैग 0 टैग था और 20 स्टोर हो गया, और नहीं यहाँ सॉरी इस वाले पे था, मैं इस पे मैं करेक्शन कर दूं थोड़ा सा, कि इस वाले पे मतलब हमारा इंडेक्स 1 1 था, इंडेक्स 1 1 था, 0 टैग पे 20 स्टोर और 1 टैग पे 30 स्टोर। देखिए क्या फायदा हो रहा है, बताए कोई बता सकता है क्या फायदा है इसका? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस थिंग? प्रीवियस डायरेक्ट मैपिंग में और इसमें क्या एडवांटेज है? सर डेटा ओवरराइड नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। ओके, वो लॉस नहीं होगा, लॉस तो कहीं ना कहीं हो सकता है, जो डेटा नहीं चाहिए होगा वो हट भी जाएगा। उसके अलावा कोई और फायदा मैंने बताया फायदा? ओवरराइडिंग कम होगी। करेक्ट, पार्शली करेक्ट वर्ड ये है। लॉस तो ठीक है, एक ही बात है कि सिंगल इंडेक्स के लिए मल्टीपल अगर टैग है, मेनी टैग्स हैं, तो हमारा टैग जो है हम हर एक टैग के वैल्यू को रिटेन कर सकते हैं या मैक्सिमम टैग के वैल्यू को रिटेन कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, केवल एक टैग स्टोर हो रहा है, जैसे ही नेक्स्ट टैग आया सेम इंडेक्स पे तो उसको रिप्लेस करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर 3 वे होगा तो एक इंडेक्स के लिए 3 टैग रख सकते हैं, 4 वे होगा तो एक इंडेक्स के लिए 4 टैग रख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा और इफिशिएंट होगा। तो इनडायरेक्टली यू कैन से डेटा विल नॉट बी लॉस्ट। डेटा लॉस थोड़ा सा करेक्ट वर्ड नहीं है, वी कैन रिटेन मल्टीपल टैग्स फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो उससे अगर जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, अब 20 30 बार बार चाहिए, अगर एक टैग होता तो 20 रहेगा या फिर 30 रहेगा, और दो टैग स्टोर करें तो 20 30 दोनों को हमने साथ में स्टोर कर लिया। यस, मोर कैन बी स्टोर्ड, लेकिन इसमें एक दिक्कत है ना कि फिर से प्रॉब्लम हो जाती है कि एसोसिएटिव वाली, टैग कोई ऑर्डर में हो तो जरूरी नहीं है, इंडेक्स तो ठीक है 1 1 पे, अब मैंने 0 1 लिखा, हो सकता है 1 0 हो। अगर 10 टैग्स हैं तो पहले 9 आया, फिर 7 आया, फिर 6 टैग, मैं टैग की बात कर रहा हूँ। जितने टैग ज्यादा होंगे तो एक तो आप वर्टिकली हम सर्च कर रहे हैं, फिर हॉरिजॉन्टली सर्च करेंगे, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो वी हैव टू सी टेक्निकली कि अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज फीजिबल टू हैव द टैग वैल्यूज। हाँ, लेकिन एक चीज तो श्योर है कि आपने कहा 20 टैग स्टोर कर ले, 50 टैग स्टोर कर ले, वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। प्रैक्टिकली हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा किस टैग तक हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहा है, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गए, एक पार्ट अभी रह गया है। तो as someone asked you, and apart from that मैंने क्विकली रिवाइज भी कर दिया, दैट इज व्हाट एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। एक चीज और रह गई थी जो जिसमें अब एसोसिएटिव मैपिंग बताया, सॉरी डायरेक्ट मैपिंग बताया, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास टैग और इंडेक्स का, ये वाला। आगे चूंकि हमारे पास लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, तो क्या किया हमने कि हमने डेटा को ब्लॉक ऑफ वर्ड्स में डिवाइड कर ली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखिए सीक्वेंशियली चल रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये पोर्शन देखिए ये टैग है मेन मेमोरी एड्रेस में और ये इंडेक्स है। इस एग्जांपल में जो हमने पढ़ा था पहले, टोटल मेन मेमोरी का एड्रेस 15 बिट का एड्रेस था, 15 बिट के एड्रेस में 6 बिट की टैग वैल्यू हो गई, 9 बिट का इंडेक्स हो गया था। अब इसके आगे चल रहे हैं, 9 बिट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ब्लॉक एंड वर्ड। क्यों? क्योंकि हमने कहा वी आर गोइंग टू हैव अ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, चीजें एक सीक्वेंस ऑर्डर में आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर इस डेटा को यूज करना है तो अगला रिक्वेस्ट इस डेटा का आएगा, उसके बाद इसका रिक्वेस्ट आएगा, उसका इसका रिक्वेस्ट आएगा। तो हम ऐसा क्यों ना करें, अगर इसकी रिक्वेस्ट आ रही है तो हम इसको इंडिविजुअली रिप्लेस करने के बजाय पूरे ब्लॉक को रिप्लेस कर दें। फायदा, चूंकि इफ यू हैव अ कांसेप्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तो अगला जो हमारा हिट रेशियो इंप्रूव करेगा, अगला जो भी डेटा चाहिए होगा वो ऑलरेडी मेमोरी में आ चुका होगा। दैट इज अजम्पशन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ब्लॉकिंग। हमने क्या किया, टेक्निकली इंटरनली कोई चेंज नहीं है, अब हमने क्या किया, अपने डेटा को ब्लॉक पे ऑर्गेनाइज कर दिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास इस केस में 6 बिट का तो टैग हो गया, इसका मतलब ही नहीं है। 9 बिट का इंडेक्स बन गया, ये इंडेक्स का साइज है, और इंडेक्स को भी हमने ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, यानी कि हमारे पास एक ब्लॉक में 8 वर्ड्स हैं। एक ब्लॉक में, इन वन ब्लॉक वी गोइंग टू हैव 8 वर्ड्स। यू विल सी वर्ड का साइज कितना हो गया 3, बिकॉज 2 क्यूब इज 8,
2 क्यूब इज 8। और हमारे पास ऐसे कितने ब्लॉक्स होंगे 64, यानी 64 ब्लॉक्स। यानी अगर इसके इस एग्जांपल को लें, इस एग्जांपल में 512 वर्ड्स थे जिनको डिवाइड कर लिया गया कितने 64 ब्लॉक्स में, where each block is having 8 words। 64 ब्लॉक हो गया 8 words। अब 64 देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा 2 to the power 6, यानी 6 बिट का एड्रेस चाहिए होगा एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 8 कैसे रिप्रेजेंट होगा 2 to the power 3। 6 बिट का एड्रेस चाहिए एक ब्लॉक को पता करने के लिए, देखिए 6 लिखा हुआ है, और 3 बिट का एड्रेस चाहिए हर एक ब्लॉक के अंदर इंडिविजुअल वर्ड को पता करने के लिए। 6 and 3, ठीक है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंड कर डायरेक्ट मैपिंग में। पहले हमने अपने एड्रेस को डिवाइड कर लिया टैग और इंडेक्स में, और फिर आगे इंडेक्स को फिर से डिवाइड किया ब्लॉक और वर्ड, तो टैग ब्लॉक एंड वर्ड, ठीक है। दिस इज द पार्ट वी डिस्कस्ड, एंड देन आई थिंक वी डिस्कस दिस एग्जांपल्स। ऑलरेडी मैंने स्लाइड शेयर कर दिया आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्जीक्यूशन टाइम वाला अभी स्किप कर सकते हैं, विल सी इट लेटर। तो दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन 1 and 2 यू नीड टू सॉल्व इट, यू शुड नो। ये क्वेश्चन यहाँ गिवन है और इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर इज गिवन। ये क्वेश्चन कर लिए थे हमने, डिस्कस किया था हमने क्लास में। जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 I think these 2 questions we have discussed. नहीं किया, others reply. इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को हम देख ही लेते हैं। Now I'll see just read the question. A two-way set associative, two-way वाली मेमोरी है। two-way कौन सा set associative? यानी 2 बार टैग 2 बार डेटा आएगा। Uses block of 4 words. तो two-way set associative हो गई, and block of 4 words की बात कर रहा है। The cache memory can accommodate 2048 words. कैश में टोटल वर्ड्स कितने आएंगे 2048, टोटल वर्ड्स कैश के अंदर 2048 आएंगे, और मेन मेमोरी का साइज है 128K क्रॉस 32। तो find out all the pertinent information. We'll see what we are having. So two-way set associative है, पहली बात ले लें तो हमारे पास कैश का साइज कितना है टोटल 2048, ठीक है। अब देखिए two-way set associative है तो टैग डेटा टोटल वर्ड्स कितने स्टोर हो रहे हैं 2048, यानी कि 1024 यहाँ से यहाँ तक होंगे और 1024 यहाँ से यहाँ तक होंगे। इसका मतलब क्या है, इंडेक्स कितना हो गया, कैश मेमोरी का टोटल वर्ड्स कितने हैं 1024, कैश का इंडेक्स हो गया 1024, ठीक है। और मेन मेमोरी का साइज कितना गिवन है 128K। 128K का मतलब कितने बिट का एड्रेस हो गया 2 to the power 7 into 2 to the power 10, that is 2 to the power 17। यानी 17 बिट का एड्रेस चाहिए मेन मेमोरी के लिए। कैश में देखिए 1024, तो कितने बिट का एड्रेस चाहिए 2 to the power 10 बिट का एड्रेस चाहिए कैश के लिए, 17 बिट का एड्रेस चाहिए मेन मेमोरी के लिए। तो इससे हम टैग इंडेक्स निकाल सकते हैं। देखिए टोटल कितना हो गया 17, और जो कैश का साइज है वो इंडेक्स बन गया। कैश का साइज कितना है 10 है, देखिए तो बचा 7 बिट का क्या हो गया टैग बन गया। 17 टोटल, 10 बिट का कैश का साइज वो इंडेक्स बन गया, बचा टैग बन गया। 7 बिट का टैग, 10 बिट का इंडेक्स। आगे ब्लॉक ऑफ 4 वर्ड्स है, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं। तो हम आपको 1024 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। ब्लॉक ऑफ 4 वर्ड्स, 2 बिट का वर्ड हो गया और 1 बिट का ब्लॉक हो गया। हमें पता है इंडेक्स से ही ब्लॉक और वर्ड बनता है। 10 को डिवाइड कर लिया 8 + 2, ठीक है। आगे पूछा साइज ऑफ कैश मेमोरी क्या होगी, देखिए अब 2-वे है तो 7 बिट का टैग पहले स्टोर होगा, 32 बिट का। अब देखिए मेमोरी लिखिए 128K क्रॉस 32, यानी इतनी लोकेशंस है 128K, हर लोकेशन में 32 बिट का डेटा है।
7 बिट का टैग स्टोर होगा, फिर 32 बिट का डेटा, 7 बिट का टैग स्टोर होगा, 32 बिट का डेटा, और टोटल वर्ड्स कितने कैश में? इतने 1024। साइज ऑफ कैश की क्या होगा? 1024 क्रॉस 2 टाइम्स, यानी 7 प्लस 32, यानी कि 39 बिट्स ये होंगे, 39 ये होंगे, 39 प्लस 39 कितना हो गया? 78। और यानी कि एक रो में कैश में कितने बिट स्टोर हो गया टोटलिटी में? 78। ऐसे कितने रोज है? 1024। तो वी कैन से वन टोटल साइज कैश का क्या निकलेगा? 1024 लोकेशंस हो गई या वर्ड्स हो गई, और हर एक वर्ड पे कितने बिट का डेटा है? 78। ठीक है, चलिए विद दिस आई थिंक एक क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी सॉल्व है, उसका आंसर दिया हुआ है, सो यू कैन सी इन द स्लाइड इन द सेम मैनर। ठीक है, so next lecture will start, I think in today's lecture we repeat the entire content. In the next lecture we'll start we'll start this page replacement algorithm. So we are having certain numerical sources from that part also, that is the page replacement that we'll discuss. Okay, chaliye, okay. In case of any query you can ask me through my WhatsApp number. Okay, thank you.